دو تین اینگلز ہیں جس میں ایک تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس اور ہمارے ساتھ ریلیشن شپس اور پھر چائنا. یہ تین ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت ٹرمپ کی جو پالیسی ہے فارن پالیسی کی اس میں ہمارے لیے زیادہ انٹرسٹ ہے. اگر صرف پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہو رہے ہوتے تو وہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہوتی, لیکن ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہونا اور انڈیا کے ساتھ خراب ہونا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. آپ اسے کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زنیرہ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک جی اس وقت جیو پولیٹکس کو دیکھتے ہوئے جو پولیٹیکل سچویشن یہاں پہ چل رہی ہے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب ہم دیکھتے ہیں پالیسیز کو تو وہ لیڈ کر رہی ہیں جی ان کی اکنامک پالیسیز ان دا لیڈ. however پاکستان دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اس ریجن میں جی تینوں بلکہ جو مین پاورز ہیں رشیا, چائنا اور امریکہ, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور آف کورس یہاں پہ پھر اس ریجن کی کنیکٹیوٹی مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے وایا ایران, اور ایران ہیز اٹس اپلیکیشن, پھر وہاں پہ امریکہ کی اپنی اپلیکیشن ہے, اینڈ دوسری پھر جو سینٹرل ایشین ریجن ہے اس کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے وایا افغانستان. تو یہ جو ٹرائنگل بنتا ہے افغانستان, ایران اور پاکستان, اس پہ پاکستان ایک بڑا کلیدی رول ادا کر رہا ہے جی. اس رول کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے امریکن جو ہے وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں کہ اس رول کو پاکستان جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کی کنیکٹیوٹی کو یا ان کے بزنسز کو یا ان کی پالیٹکس کو اور ان کے جو جتنے بھی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کہہ لیں یا اکنامک آبجیکٹیوز ان کو میٹ کرنے میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. سیکنڈلی پاکستان نے پرفارم کیا جی. پہلگام سے پہلے آپ دیکھ لیں تو پریزیڈنشل الیکشنز دیکھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے یا پوسٹ پریزیڈنسی وہاں پہ دیکھ لیں تو انڈینز ور دیئر. جے شنکر بھی وہاں پہ موجود تھے, ان کی روبیو سے ملاقات ہوئی, پھر مودی صاحب کا بھی کنیکشن ہوا وہاں پہ. پاکستان واز اسٹل مسنگ. پہلگام کے بعد جب پرفارمنگ پاکستان سامنے آیا تو ایک میننگ فل پاکستان ان کو دوبارہ لگا ہے جس کو وہ رائٹ آف کر چکے تھے جی, ٹو بی ویری آنسٹ. پھر چائنا کے ساتھ پاکستان اور پاکستان جو ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن انڈیا کو جس طریقے سے وہ انہوں نے ٹریٹ کیا اس وقت جی وہ دیٹ از امیزنگ جی. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو رشیا پہ غصہ ہے, ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرسنلی بہت غصہ ہے, اور رشیا کے ساتھ اس وقت جو بھی ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو ملٹری کوآپریشن کر رہے ہیں وہ ملک ان کو بہت برے لگ رہے ہیں. اور آف کورس بھارت جو ہے وہ انڈیا جو ہے اٹ از ون آؤٹ آف دیٹ جی. اس کے بعد پھر ایران کے اوپر جب سینکشنز لگتی ہیں ان کی آئل کمپنیز پہ تو وہاں پہ بھی آپ ایرانین آئل کو بھی انڈیا جو ہے وہ ادھر بھی لنک کے جا رہی ہے. پھر برکس میں دیکھیں, برکس کے پہ بھی غصہ ہے ٹرمپ کو, وہاں پہ بھی انڈیا ایک رول ادا کرے. تو انڈیا کا یہ جو ڈوئل رول ہے نا جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انڈیا یہ تو ان کی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی تھی, یہ جو ان کی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کا کانسیپٹ تھا اور جو نان الائنمنٹ کا کانسیپٹ تھا, کیا وہ کولیپس ہو گیا ہے نغمانہ صاحبہ آپ کے خیال میں فارن پالیسی ایلیمنٹ کو اگر ہم اٹھائیں؟ بیکاز اکنامک ٹائز یا ٹریڈ ٹائز ود اے کنٹری آر ٹائڈ ٹو یور فارن پالیسی, یہ الگ الگ تو نہیں ہوتی چیزیں. سو آپ کے مطابق کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیے ابھی جن صاحب نے بڑے اچھی طرح آپ کو جیو پالیٹکس کے بارے میں بتایا ہے. جہاں تک سو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ, آئی ول کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. جہاں تک انڈیا کا سوال ہے, دیکھیں انڈیا واز ٹرائنگ ٹو پلے آن بوتھ سائڈس اور وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے بیکاز رشیا بھی فیل کرتا ہے کہ اسے انڈیا نے بیسیکلی بٹرے کیا ہے. امریکہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈبل گیم کھیلا ہے. یورپینز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب ان پہ وقت آیا یوکرین کا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نان الائنڈ ہے, ہم اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہے ہماری, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جب نیچرلی اس دفعہ انڈیا کی بات آئی تو یہ سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا از ناٹ اے ریلائبل پارٹنر, کیونکہ وہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. سو انڈیا ہیز بین ویری بیڈلی ایکسپوزڈ. دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے انڈیا نے خود اپنے آپ کو ٹیررزم کے ریفرنس سے ایکسپوز کیا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ آف کورس جیسے جنرل صاحب نے کہا ہماری بھی ریلیونس جو ہے وہ اس 4 day کانفلکٹ کے بعد بہت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ہمارا اور چائنا کا جو ایک اسٹریٹجک الائنس ہے وہ بہت
पावरफुल तरीके से सामने आया है, जो कि एक बहुत बड़ा नेचुरली चैलेंज है जो कंपीटिंग पावर्स हैं उनके लिए भी और इंडिया के लिए भी। लेकिन ये सब अपनी जगह, हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए हर नेशन जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है। अब इस वक्त जो ट्रम्प साहब का रुझान पाकिस्तान की तरफ हुआ है, और उन्होंने तो इंडिया को यहाँ तक भी कह दिया कि इंडिया और रशिया की तो जो इकोनॉमीज़ हैं वो डेड हैं, और और उन पे उन्होंने कहा आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, एग्जैक्टली जो उनके वर्ड्स हैं, एंड दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। जी जी इतना ब्लंटली देखिए जी, गो अहेड। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले भी जब ये फोर डे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो कई दफ़ा ये बात कही थी कि ये तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जी उन्होंने, अमेरिका ने अपनी ये जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी उसमें से इंडिया को निकाल दिया। इंडिया कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर, लेकिन हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है कि वी वांट गुड, प्रिडिक्टेबल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द यूएस, और हमारी जो चाइना से रिलेशनशिप है इट्स नॉट अगेंस्ट द अमेरिकन्स, वो हमारा एक अलग पिलर है और वो कंटिन्यू रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारी तरफ इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जो इतनी मेहरबान हो रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये एक वन ऑफ ट्रम्प साहब का इरेटिक रिएक्शन है बिकॉज उन्हें इंडिया पे गुस्सा है, या देयर इज अ मीनिंगफुल शिफ्ट इन द अमेरिकन स्ट्रेटजी टुवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए एक शॉर्ट टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म। इस पे आती हूँ मैं आपकी तरफ नगमाना साहिबा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं जरा जाहिद की तरफ लेके जाऊँ, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है कि आप लॉन्ग टर्म में जितना मर्जी चल लें यूएस के साथ, उनका जब फोकस शिफ्ट होता है और जब वो रीफोकस करते हैं वो बड़ा स्विफ्ट होता है, वो बड़ा एराटिक होता है और वो बड़ा केओटिक होता है। और ये एक दफ़ा नहीं, ये फॉरएवर वॉर्स की जितनी हिस्ट्री है उसमें देखें तो यूएस का यही किरदार रहा है। ये अलहदा बात है कि क्योंकि वो सुपर पावर है तो वो इन्हीं चीज़ों के दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा देता है। पहले उन्हें हमारी और चाइना की अलाइनमेंट पे प्रॉब्लम थी, आज उन्हें इंडिया और रशिया की अलाइनमेंट पे प्रॉब्लम है। तो द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम जो हम तब से पूछ रहे हैं जब से सीपेक और गवादर पोर्ट इनिशिएट हुआ है कि हाउ डू वी नेविगेट in a meaningful way between China and US, ये कैसे पॉसिबल होगा? जी जुनैरा, देखिए मैं समझता हूँ कि जी अभी इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है और रिलेशंस भी जो है जी ये बहुत तब्दीली आई है जी। 21st सेंचुरी की रिलेशनशिप हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है या लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो अब अनप्रिडिक्टेबल हो गए, जो थोड़े से मुश्किल हो गए। पुराने जमाने में मिलिट्री की जो एप्लीकेशन होती थी वो अलायंसेस हुआ करती थी। अब कोलिशंस हैं, कुछ कोलिशन ऑफ विलिंग्स हैं और कुछ कोलिशंस बनाई जाती हैं, कुछ थोड़े अरसे के लिए बनाई जाती हैं, लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होती है। उस पे लॉन्ग टर्म्स अभी देख लेना, नेटो इतना बड़ा मिलिट्री अलायंस है जी, लेकिन वो भी अंडर स्ट्रेस है और अमेरिका जो है वो उसको डिक्टेट कर रहा है। अमेरिका का एक मजाज है जी उनके साथ, आप देख लें, यही ट्रम्प के नारे लगवा रहे थे मोदी साहब कुछ अर्सा पहले, अब की बार ट्रम्प सरकार और हाउडी मोदी, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही थी। तो हु कुड इमेजिन, अब सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट मोदी साहब के लिए यही हो रही है कि मैं तो आपकी बार ट्रम्प सरकार बढ़ाए, और वही स्पीचेस उनके वो चल रही। कहने का मकसद ये है कि ये टेम्परेरी भी है या लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है। अब यहाँ पे हमारी जो डिप्लोमेटिक मनूवर है, सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर, वो हमने करनी है जी। वी कांट इग्नोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन है उसमें हमें अमेरिकन सपोर्ट की भी जरूरत होगी। ऑफ कोर्स चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जैसे अभी एक्सीलेंसी नगमाना साहब फरमा रही थी कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप है उनके साथ और वो हम मेंटेन रखेंगे। एंड वी चाइनीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अनटिल अनलेस के आप बिल्कुल ही उनके स्कटल कर दे। जो चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस रीजन में, अमेरिका को पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि हम
उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी तरक्की भी उधर ही जुड़ी हुई है। अमेरिकन आके इन्वेस्ट करते हैं और कोई पावर आके इन्वेस्ट करती है। देखिए, वी शुड नो द स्ट्रेटजी एंड वी शुड हैव अ वेरी गुड एग्जिट स्ट्रेटजी एज वेल, कि अगर वो मिड कोर्स हमें छोड़ते हैं या दरमियान में छोड़ते हैं या क्या क्या रिपरकशन, तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा। लेकिन जब अमेरिका की स्टेक्स यहाँ पर मौजूद होंगी तो दे विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एज वेल। वो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे क्यास मचा के ये कोई अफ्रीका वो इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ यहाँ पे केओस भी मचाएं। दैट इज नॉट गोना हैपन। इट इज नॉट हैपनिंग। और देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम जब डिबेट करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम शायद गुलामी में चले जाएंगे। पाकिस्तान ने पास्ट में डिफाइंस अमेरिका को भी शो की है। पाकिस्तान के ऊपर F-16 के फिर चीजें हुई, ब्रेसलर अमेंडमेंट्स लगी, उसके बीच में भी हम अपने प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं जी, और हमने अपने प्रोग्राम जारी रखे। अमेरिका ने पुलवामा में भी और पहलगाम में भी हमें कहा था कि आप ज्यादा रिएक्ट ना करें, उनको फेस सेविंग दे दें, वो एक आध धमाका इस तरह का या मिसाइल अटैक करेंगे। They were told very clearly by our military and political leadership कि पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपकी ये बात नहीं मानेगा। और आपको याद होगा, मोदी अभी खुद स्पीच में कह चुके हैं और हम सबको पता है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही मैसेज मोदी को दिया थ्रू JD वैंस कि पाकिस्तान जो है मैसिव रिटेलिएशन करने लगे आपके खिलाफ। किसी ने पाकिस्तान को रोका नहीं, सब यहाँ पे यही समझते थे। तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डनरी कंट्री कि वो अमेरिका बिल्कुल उसको अपनी जेब में डाल के ले जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान की प्रॉब्लम जरूर हैं, इश्यूज जरूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है या लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारी सॉवरेनिटी कहाँ पे चैलेंज होगी और कहाँ पे। तो हमें फियर्स नहीं रखने चाहिए, हमें नेसेसरी सेफगार्ड जरूर रखने चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टॉकिंग ऑफ नेसेसरी सेफगार्ड्स, एम्बेसडर नगाना, हमें अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन्स भी नज़र आ रहे हैं और चाइना भी नज़र आ रहा है, सो टू ग्लोबल पावर्स हम आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। एक ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरे के हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कभी नहीं रहे, हमेशा एलाय रहे हैं, और नाउ दे आर इंटरेस्टेड कि वो हमारे जो, मैं तो उन्हें भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहूँगी, जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, वट एवर दे आर। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। हमें किस तरह चलना चाहिए इसमें? देखिए, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑन दिस। टू बिगिन विद, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग कि हमारे हर एक के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ पाकिस्तान में तो हमारा डेवलपमेंट पार्टनर था ही वेस्ट, और अमेरिका ने हमें उससे बहुत सपोर्ट की। दे प्रॉबेबली अब कुछ अर्सा पहले तक दे वर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल गई, सो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। लेकिन देखना अब ये है कि पहली बात तो ये कि वो कहते हैं जी हम ट्रेड एनहांस होगी, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड एनहांसमेंट। तो ट्रेड एनहांसमेंट मिनरल और माइंस से तो नहीं होगी, दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और ऑयल ढूंढने से भी, वो भी दैट्स अ लॉन्ग टर्म। जो आपकी ट्रेड एनहांसमेंट होगी, जो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, जो आपको बेहतरी आएगी आपके मुल्क में, वो आएगी अगर जो क्विक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे बाकी एरियाज़ हैं उनमें आए, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जिसमें हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ है। अदरवाइज तो उसका हमें इतनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक माइंस एंड मिनरल्स का है, दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजिक एसेट्स, और उसमें अभी तक आप देखें सिवाय सैंडेक के ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना ने किए हैं। और ये जितने भी मिनरल्स और ऑयल वगैरह है, ये हमारी दो उन प्रोविंसेस में है जो इस वक्त बहुत सेंसिटिव है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में नेचुरली चाइनीज़ का अपना भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है उसका। तो अब देखना ये पड़ेगा कि हम इन दोनों के इंटरेस्ट वहाँ कहीं क्लैश तो नहीं कर रहे। दूसरी बात ये भी हमें बहुत अच्छी तरह देखनी पड़ेगी कि देखिए माइंस एंड मिनरल्स ये और ऑयल वगैरह, ये प्रोविंसेस का इसमें 50% हिस्सा होता है। तो इसको फेडरल लेवल पे तो आप डायरेक्टली इस तरह बैठ के अकेले नहीं डिसाइड कर सकते। So it will have to eventually, ये जितनी भी investment, it needs a lot of homework, it means कुछ है ये council of
काउंसिल ऑफ कॉमन Common इंटरेस्ट interest. में जाएगा, प्रोविंसेस से आपको देखना पड़ेगा, और इनको लॉन्ग टर्म है तो इनको बहुत सोच समझ के इनमें इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि अब कल को अगर वो कहें कि जी अमेरिकन हमने गवादर पोर्ट के ऊपर रिफाइनरी खोलनी है, तो वो आई थिंक विल हैव टू थिंक वेरी हार्ड वेदर दैट वुड बी पॉसिबल और नॉट.